ठीक है। तो मॉर्निंग में we had discussed that delta G not is equal to delta H naught minus T delta S, और डेल्टा G is equal to डेल्टा H minus T डेल्टा S भी होता है, ये सब में नॉट रहे, या फिर नॉर्मल इक्वेशन इस तरह से रहे, बोथ आर पॉसिबल इक्वेशंस। ये वाला स्टैंडर्ड स्टेट के लिए होता है, ये वाला नॉन स्टैंडर्ड स्टेट के लिए होता है, राइट। एंड देन हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक दो छोटे इक्वेशंस पढ़े थे, लाइक दिस del G del G differentiation of delta G with respect to temperature at constant pressure is equal to minus delta H, that is change in entropy, ठीक है। now इस चीज को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, और and we are trying to say that the change in cell potential, change in cell potential with respect to change in temperature, that is differentiation of cell potential with respect to temperature at constant pressure is equal to delta S naught, or entropy change in the cell reaction. The entropy change in the cell reaction is directly proportional to temperature coefficient of cell, cell potential, that is differentiation of cell potential with respect to temperature. And we have two such equations. In first one, we are trying to relate the standard entropy change with temperature coefficient, और दूसरे में नॉन स्टैंडर्ड वाले को रिलेट करना है। In the second equation, we are trying to relate the non-standard cell coefficient with non-standard entropy change during the cell reaction. So this is one of the reactions. Based on this, we can also proceed to write, I mean ये भी equation 1 है और ये भी equation 1 ही है, both are part of equation 1. We can write 1a and 1b. This is for standard state and the other one is for non-standard state. Okay. नेक्स्ट चीज हमारे पास ये होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, राइट। डेल्टा S के बदले में मैं यहाँ पर ये चीजें लिख सकता हूँ, इज इट ओके। और डेल्टा G के बदले में भी मैं कुछ रिप्लेसमेंट डाल सकता हूँ। डेल्टा G इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस NF E cell is equal to delta H minus T delta S is equal to NF differentiation of E cell dt at constant pressure. This will make delta H is equal to minus NF E cell plus NFT D cell dt at constant pressure. मम्मा भी यही कलर का ड्रेस है। Is this okay? Yes.
और देखो ये रिलेशनशिप जो है ना, ये आपको ध्यान में रहने चाहिए हमेशा। और ये रिलेशनशिप्स अगर ध्यान में नहीं रहेंगे तो वी मे नॉट बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मेनी टाइम्स ये रिलेशनशिप्स डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में पूछे होते हैं या इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे होते हैं। If you know them or if you can at least derive them, you can easily answer those questions. If not, it will be difficult for you to answer them. Is that okay? Yes, sir. एक आखिरी चीज इन रिलेशनशिप में, मतलब ये तो डेल्टा एस को मैंने रिलेट कर लिया, डेल्टा जी को रिलेट कर लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह को आखिरी रिलेशनशिप जो है वो हमारा कुछ इस तरह का है। E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by N ln log Q। Now when system equilibrium आपके पास वो केमिकल हम करते हैं हर 2 हफ्ते में फिर से गंदा हो जाता है। system will come at equilibrium, the E cell will become zero and Q will become equal to K, the equilibrium constant. Is it okay? Yes, sir. So 0 is equal to E naught cell minus 2.303 RT by N NF log K, that implies log K is equal to NF E naught by 2.303 RT. थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, एसी तो ऑन है ही नहीं, या फिर ये देख लो लड़की को, ये देखो दीवार बनाई गई है, देखो इतना मस्त दिख रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन समझ में आया ना। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम ई नॉट सेल जो है उसको कैलकुलेट करके, और उसका पता अगर हमको रहता है तो वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन। इज दैट ओके? हेलो, is this okay? Yes, sir. So these are the basic calculations or related informations. अच्छा, एक चीज और
छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक सेल पोटेंशियल यूजिंग टू हाफ सेल तो निकालना मैंने बता दिया है आपको. देयर इज वन यूनिक कंडीशन व्हेन टू हाफ सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर. ठीक है, दो हाफ सेल को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल हाफ सेल हम जनरेट करते हैं. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दो हाफ सेल्स को कंबाइन करके हाफ सेल 1 एंड हाफ सेल 2 को कंबाइन करके हम एक फुल सेल बनाते हैं. ठीक है, और सिंपली सेल बनाते हैं, राइट. और इसके लिए क्या होता है हमारा ई सेल जो होता है दैट इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन ऑफ OHC एंड ई रिडक्शन ऑफ RH. ठीक है, वहाँ हो गया भैया? ऐसे करके ई सेल हम निकाल लेते हैं. इज दैट ओके? अरे भैया ये मेरी अब बेटी देखिए लाइन बना दी. देयर इज अनदर सिनेरियो जहां पर दो हाफ सेल रिएक्शंस या दो हाफ सेल्स को कंबाइन करके एक्चुअली हम एक हाफ सेल ही जनरेट करते हैं. आर यू देखना गेटिंग भैया दिस गर्म पॉइंट? होगा थोड़ा. For example, I'll give you, Fe is going to or be getting oxidized to Fe2 तो plus. आप ऐसे कर दो. ठीक है, ठीक है. नहीं लगेगा, दूर बैठ जाओ. And then Fe2 plus is further oxidized, ठीक है, to Fe3 plus. So basically this is one half cell reaction, this is another half cell reaction. These two electrode reactions are combined together to get what? Fe getting converted to Fe3 plus 3 electron. ठीक है, ये हाफ सेल 1, ये हाफ सेल 2 और ये क्या हुआ, ये भी हाफ सेल नहीं हुआ, हाफ सेल 3. तो यहाँ पर क्या हो रहा है Hc1 plus Hc2 plus is giving us Hc3. Is that okay? Yes. अच्छा, जब ये वाला सिनेरियो होता है when two half cells are being combined together to give another half cell. ठीक है, when two half cell reactions are combined to give a third half cell. अब पॉइंट ये है कि अब तुम अगर ऐसे सोचने लगोगे कि फिजिकली सर इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, तो फिजिकली नहीं करते हैं. फिजिकली ऐसा जनरली नहीं किया जा सकता है, किया भी जाता है, करेंगे भी, ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं करेंगे, बट हर बार एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा जैसे दिख रहा है. मतलब जैसे वहां पर वायर्ड कनेक्शन होता था वैसे यहाँ पर वायर्ड कनेक्शन नहीं होगा. वी आर गोइंग टू डू अचीव इट इन अ डिफरेंट मैनर. ठीक है, मैनर क्या होगा दैट आई विल डिस्कस मतलब आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद में मैं डिस्कस करूंगा. इसका एक आई वांटेड यू टू हैव अ क्वांटिटेटिव ओवरव्यू कि if this is the case then how are you going to deal with it and how are you going to find the effective half cell potential, right? Effective half cell potential हम लोग कैसे find करेंगे, that is something which I wanted to highlight. या वहाँ के लिए भी फिर बेड पे गिरेगा ना भैया, चादर वहाँ सर के ऊपर भी जाएगा. सर आपके सर के ऊपर भी गिर सकता है. उस तरफ से वो तो करेंगे chemical नहीं उसी तरफ से, लेकिन वो गारंटी नहीं लेंगे हमें, तो आपके ऊपर भी गिर सकता चलिए है. थोड़ा गिरेगा. केमिकल नहीं मार.
नहीं केमिकल मार दो, कोई इशू नहीं है, उस तरफ के मारो ना, घुमा के मारना, तब सारे को पत्ती को अंदर दे दे। या फिर दानिश एक काम 5 करो, मिनट भी नहीं लगे 5 मिनट के लिए रुक जाओ ना, I'll रीस्टार्ट in 5 minutes। अरे मतलब ऑफ नहीं कर रहा हूँ, आई एम म्यूट यस आई एम जस्ट म्यूटिंग एंड सो एक सेकंड लास्ट when two half cell reactions are combined to make third half cell reaction, like this example where Fe is being converted to Fe2 plus, this is one half cell electrode reaction E Fe to Fe2 plus, and the second one is E Fe2 plus to Fe3 plus. So basically one half cell reaction and second half cell reaction can be appropriately combined to get a third half cell reaction, which is Fe to Fe3 plus. When these type of combinations of half cells are used to produce a third half cell, we have to understand that electrode potential is an intrinsic property. Hence it cannot be directly added up. Okay? We have to shift to a corresponding extrinsic property in order to add or to understand the changes. We can take a very simple example like like that of temperature, where if I am going to add a 2 kg water at 50 degrees Celsius with say 5 kg water at 100 degrees Celsius, we cannot say that average temperature of the mixture or the temperature of the mixture will be 75 degrees Celsius 50 plus 100 by 2. Rather, we have to do appropriate exchange of heat in order to arrive at the final temperature of the mixture. Here the corresponding extrinsic property, extrinsic property corresponding to electrode potential, extrinsic property corresponding to electrode potential is delta G. ओटीपी चाहिए एंड करने के लिए वो पेमेंट में वो ओटीपी भी नहीं आया ओटीपी पेमेंट होएगा तब ओटीपी चाहिए मेरे इधर से चला गया उधर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा Here Fe2 plus 2 electron and Fe2 plus going to Fe3 plus 1 electron. Here I am assuming कि यहाँ पर N1 electron का transaction होता है generalized scenario में, और second condition में it is N2 electrons which is getting transacted, N2 and N1. EMF for the first reaction is, or electrode potential of the first reaction is E1, electrode potential of second reaction is E2, and then we have combined half cell reaction, that is Fe directly going to Fe3 plus, leaving behind 3 electrons. These 3 electrons can be termed as N3. An electrode potential corresponding to this third reaction is E3. Then the delta G of the 3 reactions can be, or 3 half cell reactions can be written as delta G1 is equal to minus N1 Fe1, delta G2 is equal to minus N2 Fe2, and delta G3 is equal to minus N3 Fe3. Also, delta G being the extrinsic property, they can be added between 2 reactions. If 2 reactions are getting added, their delta G can be added to get the delta G of the resultant reaction, and that is what we are doing over here. We are adding first reaction and second reaction to get third reaction, and therefore we are adding free energy change of the 2 reactions to get free energy change of the third reaction, that is delta G1 is equal to plus delta G2 is equal to delta G3, that is minus N1 Fe1 minus N2 Fe2 is equal to minus N3 Fe3.
delta G being replaced with NFE1, and we can then combine them or rearrange them to get E3 is equal to N1E1 plus N2E2 divided by N3. देखो ना भैया मेरे पेट में भी Hello. Based on this derivation, E1 is और the कोई आपके पास हेल्थ सेंटर का नंबर half cell वो भी बहुत बार E1 कॉल करूंगा तब hello. E1 is the half cell potential of or electrode potential of first reaction, electrode potential of second reaction, electrode potential of third reaction. So third electrode potential of third reaction can be derived इसमें using मैंने this कमेंट particular डालने का भी कहीं से formula. चैन नहीं दिया कैसे डालना जैसे आप ऑनलाइन देखिए ना आपको फ्री रहेगा ऑनलाइन ये वापस पेमेंट करने बोलेगा क्यों चार पेमेंट हो गया तो फिर क्यों बोलेगा? अरे वो एक ही सेकंड अब देखो आपका वेबसाइट ही We हो have जाएगा क्या करो E naught Cu C2 plus, that is conversion of Cu to C2 plus, is minus 0.6 volt. Cu plus to Cu2 plus conversion का E naught will be what? If E naught of Cu to Cu plus is minus 0.2 volt. Now we will just write the equation in each case. We will put the E1 value, the respective E values, and corresponding N values. कॉल बैक करेंगे Now N1 for this is 1, N2 for this is 1, N3 is going to be 2. Now we can directly use this equation or we can use this one, this relationship. बच्चे का पार्टी तो दिन रात चलता रहता है चालू है क्या है So from this we can have N3E3, N3E3 मम्मा चालू है हाँ बेटा जब तक बैटरी नहीं मम्मा का बच्चा चालू है N3E3 is equal to N1E1 plus N2E2, that is 1 into minus 0.2 plus 1 into आप ही लगाते is रहो ना equal भैया to 2 मेरे को into तो कॉल बैक minus आएगा इनका नंबर 0.6, तो ध्यान that ही is रहता है कॉल E2 बैक is ही करेंगे equal तो to ही मैं minus बात कर सकती 1.2 and minus 0.2. Minus 1.2 plus 0.2 makes minus 1 volt. So E2, that is electrode. अरे कैश इसलिए नहीं देते ना वो ये सर्विस पे अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे ना तो 10,000 का वारंटी देते हैं कैश पे कोई वारंटी नहीं रहता है E naught is इसलिए लोग equal to कैश में नहीं Cu plus पेमेंट to करते हैं Cu2 plus is equal to मैंने भी ऑनलाइन वही देख के लिखा था कि ऑनलाइन पे करूंगी E naught Cu plus to Cu2 plus will be equal to minus 1 volt. Okay. Next thing is we are going to have a look at different this thing half cell reactions. Okay. We are now going to look at different types of half cells or different types of electrode-electrolyte combinations, or we can simply say we are going to look at different types of electrodes. ठीक है अब इलेक्ट्रोड्स का मतलब इलेक्ट्रोड्स और उनका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए वी जनरली रिलाई ऑन दिस रिलेशनशिप ठीक है डेल्टा जी अगर 2 रिएक्शन या 3 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन मेरा कोई एक सेल रिएक्शन हो रहा है हाफ सेल रिएक्शन हो रहा है तो उसका जी नॉट के थ्रू हम उसके ई को कैलकुलेट करते हैं मतलब हर का G1 G2 G3 वगैरह को हम ऐड करते हैं देन वी गेट फाइनल जी एंड उस जी को नेट रिएक्शन जो होता है जैसे यहाँ पर फाइनल जी को नेट रिएक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ हम डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं दिस सेम प्रिंसिपल इज फॉलोड ओवर देयर आल्सो
we are going to have a look at some of those reactions. Okay. इसलिए नहीं कर रही अच्छा, इसके अलावा अगर इसमें और कोई भी लेना है एक एग्जांपल, तो यू कैन टेक अनदर एग्जांपल. देखो मैं यहाँ पे जहाँ- गलत लिख दूंगी यार, पेड इन कैश, तो ये बंद हो जाएगा, पर फिर वो आपसे बोलेंगे कैश किधर. So for this is going to be equal to 0.07 volt. We can calculate it using, this is again N3, this might be N2, and this could be N1, which is equal to 2 electron, 1 electron, and 3 electron. So N3 E3 is equal to N2 E2 is equal to plus N1 E1. Therefore N1 E1 is equal to N3 E3 minus N2 E2, that is equal to 3 into 0.6 minus 1 into 0.4 minus 1.4 2 into E1 is equal to 1.4, that implies E1 is equal to 7. Is that okay? Let us now explore about types of electrode potentials. पापा वो टेबल के नीचे था The first type of electrode is gas ion electrode or gas ion housing. Gas ion housing. ठीक है, या फिर इसको गैस आयन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं. Gas ion housing या gas ion electrode में what happens is the base example is hydrogen electrode में SHE or hydrogen electrode. Yes. Or we can at the same time we can have chlorine electrode. ठीक है, Hey, are you seeing two times payment price, or you're seeing one time payment price? Because for me, Paytm में से it's showing as paid. It's IndusInd Bank का credit card से I made the payment. So credit card से भी it's showing as deducted. Now if you're saying that it's not been received by you, is it okay for you to wait for 1-2 days to receive the amount, or should I make the
period again, and then it's a hassle for me to raise a case against. Yeah. ठीक है, तो अभी in short you're saying that it's not been paid from my end as of now, right? तो मैं दोबारा करूँ पेमेंट या फिर क्या करूँ? हाँ, एक्चुअली आज कार्ड्स नहीं शो कर रही हैं आप वेबसाइट पे फॉर सम रीजन, तो और कैश नहीं है अभी मेरे पास 3,000 देने के लिए। Do you want cash? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं कैश ले लेती हूँ। और Okay. So gas and half cells में the two common examples are hydrogen electrode and chlorine electrode. Hydrogen electrode में basically hydrogen gas gets converted into hydrogen ion. It's going to be either like this, one electron, or reverse of it, like hydrogen atom ion combining with electron to produce H2 gas. Similarly, chlorine gas के लिए it is going to be Cl2 be combining with an electron to get Cl minus aqueous. ये भी aqueous रहेगा और ये गैस रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इन हाफ सेल्स का सेल नोटेशन जो होता है, हाउ टू राइट इट। सेल नोटेशन रफली तो मैंने बता दिया है आप लोगों को, लाइक ये जो टी का जो नोटेशन होता है उसी के हिसाब से तो आपको ओटीपी या जो भी भेजना है, आई विल जस्ट क्लिक दैट आई एम पेड बाय कैश एंड अकॉर्डिंगली ओटीपी आई विल गिव यू जनरेट होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। कैन आई नो योर नेम प्लीज? कैन आई नो योर नेम प्लीज? यस, ओके, थैंक यू विष्णु जी। सो हाफ सेल के नोटेशंस का जो आइडिया होता है हमारा, ये होता है कि देयर इज वन, या सेल का नोटेशन जो होता है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स। एक ऐसे सिंगल लाइन होता है, एक डबल लाइन होता है, फिर उसके बाद एक सिंगल लाइन होता है, एंड देयर कैन बी मल्टीपल सिंगल लाइन्स। ये जो डबल लाइन होता है ना, दैट इज देयर टू इंडिकेट सॉल्ट ब्रिज। भैया वो फिर से बोल रहे थे कोई और तरीके से आप पास कीजिए। ये जो सिंगल लाइंस होते हैं, these are called page separators. अरे अभी तो मैंने आपको 885 है, 5 तो चाहिए तो आपको चाहिए। Not the case. Then इसके पहले एक और हम वर्टिकल लाइन डाल करके इनर्ट इलेक्ट्रोड का नाम लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड का नाम लिखते हैं, ठीक है। जनरली पीटी इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं हम लोग, वो लिखते हैं। सिमिलरली अगर क्लोरीन इलेक्ट्रोड की बात करें, वी आर गोइंग टू राइट Cl minus over here, sorry Cl minus over here aqueous। इसका कंसेंट्रेशन अगर लिखना है हमें तो हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद Cl2 gas that is going to come here with its pressure, और यहाँ पर भी चूंकि ये एंटिटी जो है ये डायरेक्टली इस पर वायर हम कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज गैसियस सिस्टम, सो वी नीड टू कनेक्ट इट वाया अ रॉड, सम इनर्ट रॉड जिसके साथ ये रिएक्ट ना करे,
और पीसफुली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करे. So we generally write, I mean take Pt, which is a inert material. Are you getting this point? So लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या रहता है, एनोडिक हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल OHC. राइट हैंड साइड में क्या रहता है, रिडक्शन हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल, कैथोड, एनोड, कैथोड. इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? Yes, हेलो, sir. ठीक है. और फाइन. अब मान लो लाइक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. वो लेफ्ट साइड पे क्यों होता है? क्या क्या, सॉरी, तो वो डायरेक्शन से फिक्स्ड क्यों है? किसका डायरेक्शन? ये वाला. सर मतलब एनोड लेफ्ट साइड पे रहेगा और कैथोड राइट पे. अच्छा, ये फिक्स क्यों है? अरे फिक्स नहीं होगा तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा पार्ट है? देखो, ये जो हमने लिखा है ना, आयन यहाँ पर और क्लोरीन गैस यहाँ पर, मतलब जो नॉर्मल एटम है वो यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड नहीं है. यू कैन रिप्लेस इट ऑल्सो. यू कैन राइट, कहीं पर अगर ऐसा लिखा रहता है Cl2 पहले और Cl- बाद में, तो वो गलत नहीं होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर वो राइट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें रिडक्शन हो रहा है. और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? Cl is acquiring electron to get converted to Cl-, right? So doesn't matter Cl- पहले लिखा हुआ है या Cl2 plus पहले लिखा हुआ और बाद में Cl- लिखा हुआ. Is it okay? Similarly यहाँ पर भी it doesn't matter H2 पहले लिखा हुआ है H1 H plus पहले लिखा हुआ है. हाँ, ये जरूर है, एक गैस है और दूसरा आयन है, एक्वस है, तो इन दोनों को एक लाइन से सेपरेट करके लिखना है. बट पहले कौन लिखा रहेगा ये नेसेसरी नहीं है. ये दोनों के पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है. हाँ, ये इलेक्ट्रोड को सबसे पहले ही लिखना होता है, दैट इज नेसेसरी. तो बेसिकली होता ये है कि अगला टाइप जब हम पढ़ेंगे ना, मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन जब लिखेंगे तो मेटल जो होता है ना, वो सॉलिड होता है, दैट कैन डायरेक्टली बी कनेक्टेड विथ आयन, that can be directly connected with wire for electron का ट्रांजेक्शन, राइट? तो उस केस में ये नेसेसरी हो जाता है कि क्योंकि मेटल ही हमारा ऑक्सीडाइज होने वाला एंटिटी भी है और प्लस वही इलेक्ट्रॉन को स्टोर भी करके रख रहा है, इलेक्ट्रॉन बैंक भी है, तो दैट हैज टू कम फर्स्ट. सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी लाइक M plus Mn plus, एंड फिर दूसरी तरफ में आपका जो भी है दूसरा मेटल है, मान लो X प्लस 2X अगर बन रहा है तो ये लिखोगे आप. इज दैट ओके? अब यहाँ पर ये मेटल आयन, मेटल को पहले लिखने का मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पर इनर्ट नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है आपके पास. अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड रहता तो यहाँ पर डाल करके लिख देते हैं हम, फिर इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है तो इलेक्ट्रोड को सबसे पहले लिखना होता है, ये जरूरी होता है. एनोड जब लिख रहे हैं तो इट विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोड, एंड कैथोड जब लिख रहे हैं तो दैट विल एंड विथ इलेक्ट्रोड. इज दैट ओके? ये दो मैंडेटरी चीजें. बात समझ में आई? और अगली चीज लाइक ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, रिडक्शन किसमें हो रहा है, वो हम साइड के बेसिस पर ही डिसाइड करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पहले क्या लिखा हुआ है बाद में क्या लिखा हुआ है, राइट? Yes, sir. क्लियर है? इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑन विच साइड दे आर प्लेस्ड. इफ दे आर प्लेस्ड इस ब्रिज लाइन के लेफ्ट में, तो अच्छा देखो, ब्रिज लाइन भी जरूरी नहीं है कि हर जगह दिया रहे. देयर आर केसेस जहां पर ब्रिज लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती है. जैसे अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो पेस्ट के फॉर्म में है, तो दो पेस्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मिक्स नहीं होंगे, राइट? अब जैसे कोलगेट को पेप्सोडेंट के साथ तुम मिलाने की कोशिश करोगे, अब उन दोनों पेस्ट को आपस में
निकाल के रख दोगे, आर दे गोइंग टू fuse with each other or diffuse into each other and mix with each other? No, they will not, right? Yes, sir. So what do you need, do we need to do? Or in that scenario we do not need this separator, salt bridge का काम क्या है? वो बेसिकली इंटरमिक्सिंग को, एक तो सबसे पहले इंटरमिक्सिंग को रोकता है और दूसरा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मिनिमाइज करता है और चार्जेस को न्यूट्रलाइज करता है। ये 3 काम होते हैं। आई थिंक 2 लिखवाया है, तीसरा वाला नहीं लिखवाया मैंने। इलेक्ट्रोलाइट्स के बल्क मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। इज दैट ओके? बल्क मिक्सिंग को क्यों प्रिवेंट, आई मीन व्हाई इज इट नेसेसरी? बेसिकली अगर बल्क मिक्सिंग हो जाएगा तो एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, दोनों की बल्क मिक्सिंग होएगी तो दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट एट फास्ट स्पीड एंड दे आर गोइंग टू जनरेट हीट एनर्जी इंस्टेड ऑफ utilizing their energy in terms of electrical energy. They will destroy their energy in form of unorganized heat or evolution of unorganized energy called heat. बात समझ में आ रही है? So salt bridge Yes, का sir. एक important काम है solutions की intermixing नहीं होने देना, electrolytic solutions की intermixing, bulk intermixing को prevent करना। अब मान लो हमारे दोनों इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड हैं तो बल्क मिक्सिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर बल्क मिक्सिंग हो ही नहीं रहा है और बल्क मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो सॉल्ट ब्रिज हम क्यों एक्स्ट्रा डालेंगे, राइट? तो Yes, sir. जो हमारा ड्राई सेल हुआ करता था ना पहले, मोटा वाला निप्पो या फिर जो भी बैटरीज हुआ करती थी एवरेडी, सो Yes, sir. they have actually that paste kind of thing as electrolyte, ठीक है? Therefore they used to be called as dry cell. तो वहां पे सॉल्ट ब्रिज की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है और वो रिएक्शंस में एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए वी डोंट यूज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है? वी जस्ट यूज कॉमा सेपरेटर, ठीक है? अच्छा एक चीज और, यहाँ पर मान लो एक सॉल्यूशन से ज्यादा चीजें हैं, जैसे H प्लस के अलावा कोई और भी प्लस है, ठीक है? तो we separate them by a comma. एक से ज्यादा आयन है यहाँ पर तो we are going to separate them by a comma, ठीक है? I'll take up some examples of that nature in the next lecture. Types of electrode पढ़ाने में ही वो भी पढ़ाऊंगा और फिर इसके ऊपर सेल नोटेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है? सेल नोटेशन और सेल पोटेंशियल दोनों के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर यानी कल के लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिटेल आउट other types of electrodes, ठीक है? गैस आयन इलेक्ट्रोड थोड़ा सा आपको आइडिया मिला। The second one is metal ion electrode और उसके बाद थर्ड वन होता है metal insoluble salt electrode। इसके अलावा और भी 2-3 होते हैं, एक कैलेमल इलेक्ट्रोड बचा हुआ था वो पढ़ेंगे हम लोग। Then metal oxide hydroxide half cell or electrode, metal oxide hydroxide electrode. Then we have oxidation reduction electrodes or half cells, and there are 2 more. We'll go through them all, ठीक है? Yes, sir. अच्छा इसमें भी थोड़ा सा और एक चीज बचा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं हम लोग, half H2 giving us H plus plus minus, इसका कंसेंट्रेशन C1 है, पार्शियल प्रेशर V1 है, नॉट H प्लस से H2 जाने का यानी रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा?
ये तो स्टैंडर्ड वाला रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल विल बी माइनस 2.3 mod 3 RT by 1F or CF into log. अब यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, रिडक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रखा है हमने, ऑक्सीडेशन लिख रहा है, ये तो चलेगा नहीं, वी हैव टू राइट द, ये अगर रिडक्शन वाला ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको रिडक्शन वाला हाफ से लिखना होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर. सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रेशर 1 बाय रूट डिवाइडेड बाय C1. इसका प्रेशर P1 है और इसका कंसंट्रेशन C1 है. सो ये हमारा हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिडक्शन. अब ये अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो कोई बात नहीं, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो हम इसका ऑक्सीडेशन वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो क्या निकालूंगा, H2H plus will be simply equal to minus H2. ठीक है, और इस वाली चीज को यहाँ पे रख लूंगा, ये पूरी with minus sign appended. Is that okay? यस सर. तो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू.